All right. So today's topic is the topic of. So if you have a car negotiating a circular motion, how does it do that? Okay. So बैंकिंग क्या होती है हमने पढ़ा था किस चीज की बैंकिंग करते हैं नेट बैंकिंग की बात नहीं हो रही है ये दिस इज नॉट नेट बैंकिंग ओके सो हाउ डू यू बैंकिंग you do the banking of the curved roads ठीक है so banking is done for the curved roads so if that means a circular type of road ठीक है so banking में मैंने आपको बताया था the road gets elevated by us and this is called the banked angle the car is trying to go in a circle but needs a source of centripetal force किसी भी circular motion में हमने study करा था we need a source to provide centripetal force if you're going in a circle then you need something called as a centripetal force and centripetal force comes from another source So external force. like a tension in the string and all, right? So this centripetal force is always directed towards the center. जो भी provide करेगा center की तरफ करेगा. Has to be central. And the velocity of the body is always in tangent to the circle. So velocity and centripetal force are perpendicular to each other. In a circular motion, the velocity and centripetal force are perpendicular to each other. If you are going in a circle, you would like to always go to a tangential direction. This is your inertia of direction. Right? Which means if this is your string and this is a stone and you rotate it using your hands and the string suddenly breaks and the stone is here, the stone would like to go like this. It will not like to go in the circle. It wants to go tangential. But क्योंकि tension available है, Yes. so that tension always keeps it towards the center. So the tension provides the required centripetal force to keep it in a circle. To keep anything in a circular motion, you need a centripetal force. Otherwise, you cannot be in the circle. You would like to go like this, but एक centripetal force मिलती है तो आप थोड़ा मुड़ जाते हो, फिर मुड़ जाते हो. तो you keep on turning in such a way that your whole motion becomes a circular motion. ये turning ही तो हो रही है और क्या हो रहा है? Right. So when you are going in on the roads in a circular motion, there is an upper limit beyond which the source may not be. देखो mass of the car तो बदल नहीं पाओगे आप. वो same ही रहेगा. Right, and then you have the radius of the circle. This government decides, right? No change in this. So the how much velocity is allowed in the circle is a question mark. Generally, when you are moving on the road, the centripetal force comes from the friction. Centripetal friction. Yes. जनरली फ्रिक्शन ही देता है. सारी रोड्स पे आपने देखा नहीं होगा कोई रोड उठी हुई है ऐसे एंगल पे. हाँ, तो कुछ होता है. मेन सोर्स जो होता है फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन में नुकसान ये है कि आपका जो टायर है उस दैट वी अंडरगोज वियर एंड टियर, राइट? सो यू लूज substantial money if you use friction to provide centripetal force.
So Yes, sir. another way to provide centripetal force. So this is an expensive way. Another good way to provide the required centripetal force is to use the concept of normal reaction, which is the force coming from the road to the car. So if you are, this is your car, for example. Okay, the car ka earth is pulling car like this, weight, and this is your normal reaction, right? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो तो हमेशा किसी भी सरफेस पे राइट एंगल पे ही होगा. तो ये सरफेस तो ये है हमारा अभी इंक्लाइन प्लेन, और आर के दो कंपोनेंट बना लो. एक बना लो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब दिस इज अ सर्कल, ओके, बाय द वे Okay. दिस होल थिंग इज अ सर्कल. तो एक कंपोनेंट ये बना लो और एक कंपोनेंट ये बना लो. तो इफ यू नोटिस दिस कंपोनेंट इज टुवर्ड्स डायरेक्ट, दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, okay, and is r sine theta, Oh, and this is r cos theta. So generally what happens is ये तो weight है, weight of the car. हाँ. Weight of the car मतलब how much force is being applied by earth to pull it down. earth इसे नीचे की तरफ खींच रही है mg से, Okay. और ये normal reaction है ये वाला. हाँ. This is your normal reaction. Normal because it has to be normal to this surface. जहां वो टच करता है उसके परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है. उसके दो कंपोनेंट बना लिए, और r sin theta will provide the required centripetal force, right? और r cos theta. वो mg के साथ बैलेंस हो गया. Okay. Okay. So if I have to write mathematically, Hmm. so r cos theta gets balanced by mg. तो कार जो है आसमान में उड़ के ऊपर तो जाती नहीं है. Okay. अगर r cos theta बड़ा हो जाए mg से तो उड़ जाएगी ये तो ऊपर की तरफ. Okay. It's तो this is called equilibrium. So now the car is in equilibrium vertically, मतलब y axis में it's in equilibrium, right? Equilibrium Yes, मतलब sir. upward force is equal to downward force. Okay. This is an equilibrium condition. Upward force is equal to Downward. downward force. सही है? हाँ. And what is the use of this? This becomes a source of centripetal force. ठीक है? हाँ. Let's see a situation like this where there is no friction, which is hypothetical. friction तो रहता ही है, लेकिन हम मानते हैं कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है. अभी सिर्फ हम बैंकिंग की मदद से गाड़ी को एक चक्कर में घुमा रहे हैं. ठीक है सर. Okay, so what I do is I divide both the equations. So I will write sin theta ऊपर लिख रहा हूँ मैं. ठीक. Okay, I will, so I'm making this 1 and this as 2. Okay, and what I will do is, sorry, what I'm gonna do now is r sin theta upon r cos theta is equal to mv square by r upon mg. Okay. Let's see क्या होता है. Okay, so 1 I will get a tan theta is equal to v square by rg, and v square is equal to rg tan theta, and v is equal to under root of rg tan theta, right? जी को हम 9.8 ले सकते हाँ. हैं. So you can see the velocity. This is the maximum velocity, which is up. Can you see that the velocity has no mass in it? कोई mass नहीं आ रहा. Yes, So sir. v is independent of mass. आपकी गाड़ी का weight mass कितना ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साइकिल जा रही है या कार जा रही है या बस जा रही है. जो Independent. जो हाँ इंडिपेंडेंट है. तो वेलोसिटी इज ओनली फंक्शन ऑफ रेडियस. वो तो फिक्स्ड है सर्कल पे, हाँ. उस सर्कल पे जिस पे सब जा रहे हैं.
अर्थ की ग्रेविटी भी फिक्स्ड है। अगर आप बैंकिंग के एंगल को बड़ा करते जाओगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी बड़ी होती जाएगी, जो अलाउड है। नहीं तो गाड़ियां स्लाइड करके अपवर्ड चली जाएंगी अगर बहुत तेज चलाओगे आप। तो ये गाड़ी में अभी जो है, इट हैज अ टेंडेंसी टू मे बी गो अप। इफ यू ड्राइव इट टू फास्ट, यू माइट हैव सीन मोटरसाइकिलिस्ट जो बहुत तेज चलाते हैं, वो कई बार साइड में जो वॉल्स होती हैं उसमें चले जाते हैं, बिकॉज दे आर क्रॉसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो प्रोवाइड कर नहीं पाता। सो द मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल टू यू इज दिस इज द मैक्सिमम, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन से सोर्स है, उससे बड़ी तो ला नहीं पाओगे। तो इसलिए जो आपने वेलोसिटी लिखी है ये वाली, ये भी मैक्सिमम ही है। द मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल इज r sin theta, and therefore the velocity which you obtain is v maximum. This is the highest velocity which will be allowed on that circle. So every circle which you see in Noida, Delhi, Gurgaon, wherever you stay, or in Rewari, or Naichiri, or wherever, you will see every circle. Suddenly you will find the road is 50 kilometers or 60 kilometers per hour as in India. On the circle it will become 30, because if they say, if people say कि हम तो ज्यादा तेज जाएंगे, maybe they will have to make very large circle, right? Which is not possible sometimes. दोनों तरफ मकान भी तो होते हैं। तो सब के बाहर तो चले जाएंगे। हाँ, तो मतलब how can you say कि make larger circles? If you make larger circles everywhere, the maximum velocity allowed will also become larger. But space की तो constraint रहती है ना cities में, तो you can't create bigger circular roads. Bigger circular road का radius का फायदा ये हो जाएगा कि velocity can further be increased. Right? तो assuming that radius has a constraint कि नहीं बढ़ा सकते जितना मर्जी, the only control we are left with is tan theta. Right? So the angle which road जब horizontal होती है तो ऐसी होती है गाड़ियां. Cars are like this when the roads are horizontal. Yes, sir. Right? So let's say cars are like this. But if you notice, we are एक रोड को थोड़ा सा elevated कर रहे हैं, theta. Yes. So this is the only design factor which is in control. Radius भी बड़े कर सकते हो, लेकिन सड़क बनने के बाद क्या करोगे? तो कुछ नहीं कर सकते, तो उतना रेडियस यूज करना पड़ेगा। फिक्स हो गया। वैसे तो ये टैन भी फिक्स ही हो जाता है रोड्स के ऊपर। एक बार आपने रोड बना ली तो थीटा कैसे बदलोगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो, अब रोड को तोड़ो और थोड़ा सा और ऊपर बनाओ, यही करोगे। तो एक बार फिक्स हो गया अगर रेडियस टैन, और तो फिर आपका जो v max है वो फिक्स हो गया, बिकॉज द मैक्सिमम centripetal force available is this. If this is the maximum centripetal force, then the velocity you obtain is also maximum velocity. Okay, sir. इससे ऊपर गए अगर आप, तो you don't have centripetal force available, which means आप सर्कल में रह नहीं पाओगे और फ्लाई ऑफ करके टेंजेंशियली चले जाओगे। इसलिए लोग सर्कल में आके स्पीड को कम कर लेते हैं, वहां लिखी भी होती है 30। अगर आप गए 50-60 पे, तो यहां जाने की जगह अगर ये फ्लाईओवर है तो यू विल गो लाइक दिस, ब्रेक द वॉल एंड फॉल डाउन द फ्लाईओवर, which is what happens in accidents. When you're going too fast, suddenly वो सर्कल आ गया, आपकी स्पीड कम नहीं हुई, तो आप टर्न ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अवेलेबल टू यू. You will go straight, which is your inertia of direction. You will break the wall of the flyover and fall down. Very dangerous. So therefore, on a circle, please ensure that you never drive very fast. You follow the speed rules. You know Vmax दिया हुआ है, तो इससे ऊपर नहीं लेके जाना, नहीं तो गाड़ी स्लाइड करके लेफ्ट पे ऊपर चली जाएगी. तो एक न्यूमेरिकल जो आपका था फिजिक्स में, वो इसी फॉर्मूले पे आता है कि बैंकिंग दे रखी होती है आपको रोड की, थीटा, मे बी थीटा इज गिवन टू बी सम एंगल, राइट. रेडियस भी दे रखा होता है आपको,
जी भी दे रखा है और आपसे क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच यू कैन मूव ऑन दिस रोड। तो ये वो क्वेश्चन टाइम होता थीटा निकालना है, निकाल कर सॉल्व है। हाँ, करो। तो फिर आपको वी मैक्स दे देंगे, अच्छा ये सर। रेडियस दे देंगे, ग्रेविटी दे देंगे और tan थीटा निकालने को बोलेंगे। ओके सर। Got it? So you are moving on a road which is which is only just a banked road. अभी फ्रिक्शन का इस्तेमाल हमने नहीं करा. We're just using the concept of banking, right? Let's say there is a road on which you have second scenario. You do have friction, but no banking is available to you. फ्रिक्शन इज अवेलेबल बट नो बैंकिंग इज अवेलेबल। तो मतलब वो बोल रहा है कि ये नहीं करने देंगे हम। आप रोड के अंदर व्हाट दे डू व्हेन दे जब रोड को बनाते हैं तो रोड को ऐसे बनाते हैं कि सर्कल वाले पूरे एरिया में हाँ। वो कुछ गड्ढे होते हैं जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, टायर की ग्रिप बढ़ जाती है। सो नो बैंकिंग नाउ, द रोड विल बी अ स्ट्रेट रोड, राइट। और जो टायर्स होते हैं, टायर्स उनके जो कट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि चाहे गाड़ी जा तो आगे रही होती है बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल में भी आप जा रहे हो, मान लो आप इस सर्कल में जा रहे हो, राइट, एंड दिस इज योर कार। I don't know how to draw a car, but we can try drawing a car, right? So this is your circle, these are your tires, and therefore the centripetal friction इस तरह से लगाया जाता है, टायर्स को इस तरह से बनाया जाता है कि द फ्रिक्शन इज लेफ्टवर्ड, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके। अब कोई बैंकिंग नहीं है, so which means your centripetal force will come only from friction. Now your weight is mg, your normal reaction is r, and therefore your frictional force is mu into r. कल हमने पढ़ा था, हाँ। mu into n. Yes sir. So mu into r, which is the normal reaction, will give you the required centripetal force. And r is a normal reaction, and mind you, r is equal to mg. दिख रहा है हमें फ्री बॉडी डायग्राम से, वाई एक्सिस में ये दोनों सेम ही है। तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर, राइट? Okay, so this will become v square max is equal to mu r g, and v max is equal to mu r g. ऊपर आ रहा था tan theta r g, बट ये वेलोसिटी तब मैक्सिमम आई है when you have friction only as the source of centripetal acceleration. You don't have any banking available with you. But then centripetal force कैसे आएगी? Clear ही ना? Come again? The banking is not present, then centripetal force कैसे आएगी? ये फ्रिक्शन से, यही तो लिखा है, the frictional force is the new source of centripetal force. Okay sir. Okay. हाँ। Case 2 यही है ना, हाँ sir. right? Now let's talk about case 3. Case 3 में let's use both. Reality तो ये है कि दोनों ही यूज होते हैं। Let's use, तो स्पीड बढ़ानी है ना हमको सर्कल पे, तो लोगों ने बोला भी तुम फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग दोनों का यूज करके बताओ कि नई वेलोसिटी क्या होगी उसी सर्कल पे। फ्रिक्शन भी यूज कर लो, देखो फ्रिक्शन अगर यूज करोगे तो यू नीड टू नो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर आप ये करोगे, अपना बैंकिंग करोगे, तो आपका एक्सप्रेशन जो आ रहा था वो आ रहा था वी मैक्स इज इक्वल टू tan थीटा आर जी।
Now you have both the opportunities. So let's see if you have both the opportunities, what happens? तब क्या होता है? Okay. So our case number 1 in this is the body has a tendency to go up. Body has a tendency to go upwards. बैंकिंग कर दी लेकिन बॉडी में स्लाइडिंग की टेंडेंसी है अपवर्ड्स की। तो ये आपकी बॉडी है, कार है, और ये जो है ऊपर की तरफ स्लाइड करने के लिए तैयार बैठी हुई है अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो। तो इसका ये होता है अपवर्ड। जब मैं बोलता हूं अगर टेंडेंसी अपवर्ड है तो फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट। सो दिस इज द फ्रिक्शन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये इसका वेट है, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन से मिल रही थी, पहले भी मिल रही थी, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा का कंपोनेंट है आर कॉस थीटा। अब फर्क इतना होगा कि अब दोनों ही है, द फ्रिक्शन एज वेल एज द फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट इधर सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा वो होगा एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के अगेंस्ट काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसके दो कंपोनेंट बना लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसी तरह ये जो फ्रिक्शन है, ओके, ऐसे लग रहा है ना फ्रिक्शन अलोंग, एक कंपोनेंट बन गया ये वाला एफ कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा एफ साइन थीटा। ये फ्रिक्शन है, ये एफ कॉस थीटा है, और ये है एफ साइन थीटा। ठीक है। तो आप देखो डाउनवर्ड जो प्रेसिंग है, डाउनवर्ड प्रेसिंग ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ये ट्राइंगल इज अ इंक्लाइन प्लेन, इसको देखो कैसे प्रेस कर रहा है फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का दिख रहा है ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। Let me write it cleanly, okay? So this component is f sin theta. देखो ये डाउनवर्ड है, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो ये है, ये रहा। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रेसिंग, यू कैन सी द फ्रिक्शन गोइंग एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दो कंपोनेंट फ्रिक्शन के जो है, ये फ्रिक्शन ये है, ये। Let me show it with some different colors. So this is your friction, by the way, the blue. Your car is all set to go upwards, slide upwards. Tendencies of the car to slide up. If the tendency is, why I say slide up, because in the other case, some cars, if they're going too slow, they have a tendency to go down. वो सर्कल की तरफ आके टक्कर मारती है अंदर वाली साइड पे, बाहर की जगह। तो अभी हमने केस लिया स्लाइडिंग अपवर्ड्स। टू गो अपवर्ड्स मींस स्लाइड अपवर्ड्स। एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, क्या हो रहा है? आई विल जस्ट टेक अ पॉज एंड आस्क यू व्हाट इज नॉट क्लियर, ओके? लेट मी शो यू सेपरेटली ऑल्सो। इफ दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन and say this is your car and the car has a tendency to go up, जहां भी जिस भी डायरेक्शन में जाओगे फ्रिक्शन opposes it, right? So friction is downward, but friction, we resolve friction into two components. One component is this, the other component is this. Okay. Do you see this component is pressing down? Yes, sir. mg is also pressing down, and there is a normal reaction. तो जब अगर आप किसी सरफेस को प्रेस करोगे तो आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, इफ आई हैव टू राइट फर्स्ट इक्वेशन which shows me the sources of centripetal force, what should I write? कौन दो हैं जो centripetal force दे रहे हैं? एक एक तो ये भाई है, ये वाला हमारा,
It's the नॉर्मल R रिएक्शन sign. का आर साइन थीटा। It's और कौन दे रहा so है? एफ कॉस थीटा। yes sir. Force friction sorry. ये वाला फ्रिक्शन है, हाँ, ये दोनों दे रहे हैं। centripetal mv square upon r. अच्छा, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स हाँ, एक्सिस वाला। अच्छा, वाई एक्सिस में क्या स्टोरी चल रही है? इफ यू सी इन द वाई एक्सिस देयर आर टू प्रेसिंग फोर्स डाउनवर्ड्स। वन इज एफ साइन थीटा, ये वाला हाँ, है प्रेसिंग डाउनवर्ड, ये yes sir. Yes sir. राइट। द अदर वन विच इज प्रेसिंग डाउन इज द वेट। ये दोनों प्रेसिंग कर रहे हैं, Yes sir. और अपवर्ड फोर्स जो है वो ये है, जो हाँ, ये इक्विलिब्रियम है। मैंने कार फिर R से उड़ के theta. ऊपर की तरफ नहीं चली Yes गई, sir. बैलेंस्ड है। सो यू हैव अ बैलेंस्ड सिचुएशन, Yes sir. you have a deeply balanced situation Hmm. in y-axis. In x-axis, you have written the two sources of the centripetal Force. acceleration. Oh, yeah, force, you can say that. Yes sir. V square by r is centripetal acceleration, and multiplied by mass, it becomes centripetal force. Force. Okay. Okay. ठीक है? Yes sir. So these two are the equations which we will solve, okay, Okay, by sir. dividing and all that. If you solve them, what you will get is v square. If you solve these two equations, equation number 1 and 2, and the way to solve this is by dividing them up, Hmm. right? If you solve them, you will get v square is equal to rg, जो हर एक में आया था, if you remember. Let me show you. Yes sir. See how एक में म्यू rg आया था सिर्फ फ्रिक्शन अगर हो, एक में yes. आया था tan थीटा rg। अब So भी RG rg आ रहा है, अब भी rg हाँ, आ रहा है, but now it's going to be a bit lengthy an expression, which is it's going to be mu plus tan theta, because both friction and banking are being used. Mu plus tan theta, 1 minus mu tan theta, हाँ, right? So yes sir. velocity is equal to under root of rg mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. Yes sir. Just divide 1 and 2 and you can easily find the answer, क्योंकि 1 और 2 डिवाइड करने में, if you see, इसको सिर्फ एक चेंज कर लेना 1 में, write 1 as this, r sin theta is equal to mv square by r minus f cos theta, ऐसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो ये r और r कट जाएंगे, Yes sir. मतलब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, mv square by r minus f cos theta is equal to r sin theta. If you divide these two, r will get cancelled. You don't need r. r नहीं पूछा किसी ने. Everybody wants to know कि इस कर्व में जहाँ फ्रिक्शन और बैंकिंग अवेलेबल है, what is the maximum velocity allowed? जिसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ऊपर ही स्लाइड करके चले जाओगे और पुल से गिरोगे फिर, हाँ, और क्रैशिंग हो जाएगी आपकी, you'll crash, right? yes sir. So you have to do this derivation. Sometimes they do ask it, and numericals on this. Okay, let's do some numericals on this. So they will use the words like, what is the safe limit of the velocity? Please be careful that you are able to, safe limit क्या है? क्योंकि maximum velocity के बाद आपकी crashing start हो जाती है। Okay. जो सेफ लिमिट मैक्सिमम वेलोसिटी तक रहती है। Yes, safe है ना? ओके हाँ। सर्कल में उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है mv स्क्वायर बाय r। अगर v बहुत बड़ा कर दिया तो who will provide mv स्क्वायर बाय r? क्योंकि आपने तो v बड़ा कर दिया, तो आपका mv स्क्वायर बाय r बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जो सोर्स है वो तो r साइन थीटा, वो तो वही रहा ना। नॉर्मल रिएक्शन डजंट चेंज, बैंकिंग का कर्व नहीं चेंज होगा, देन who will who's going to provide you that larger v square? No one will be able to provide it. Yes, sir. Okay, so let's do some questions on this, on the banking of curves. Okay, sir.
All right. So question है, you have a car and you will do this. Okay. Let me see if you're free to copy from notes. ऊपर जो लिखे हुए हैं. Okay. So the mass of the car is 1000 kgs. डेटा लिखता जा रहा हूं मैं क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, राइट? So let's say the mass of the car is available and the radius of the road, I don't know what road is it. It is very large. It is 100 meters. Maybe Dwarka Expressway, God knows. Okay. Or Yamuna Expressway or whatever. So let's say you have this data available and what else you need? You need banking angle. Banking. So the banking angle is given to be 15 degrees. So the mass of the car, वैसे भी आपको मालूम है मास से कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला क्योंकि मास पे डिपेंडेंट ही नहीं होती मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट? Question is, what is the maximum safe speed with which the car can negotiate this circle? The word negotiation means successfully निकल जाना. So, right? पहली बात तो ये क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन भी नहीं बोला, तो फ्रिक्शन तो है नहीं. और आपको निकालना क्या है? V max safe speed. कौन सा वाला यूज करोगे? तो इस वाले में we will use V max equals under root R G tan theta. बहुत बढ़िया, करेक्ट है. अब देखते हैं, कर लेते हैं. Let's take R. So this is highly misleading. तो यार मास का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है. ओके, ऐसे ही 10 ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा. हाँ. Okay, but tan 15 is going to be a challenge for you. Yes, sir. Okay, so tan 15 निकालने के लिए you will have to refer to the chart. But generally जो मैथ्स के बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि tan of 15 can be written as tan of 45 minus 30. Okay. And tan of a minus b का जो रूल है, it is tan a minus tan b upon 1 minus tan a tan b. Okay. So अब मैं लिख रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ मैं वहां से. tan 45 minus tan 30 divided by 1 minus tan 45 tan 30 is equal to 1 minus 1 by root 3 divided by 1 minus 1 into 1 by root 3. Remember, tan 45 is 1. Yes, sir. Tan of 30 is 1 by root 3. Tan of 60 is root 3. Okay. Tan 90 is infinity. Okay. Tan of 0 is 0. So this will become root 3 minus 1 upon root 3 minus 1. LCM root 3 कट जाएगा दोनों में. हाँ. Right? Which means if you have to put the value here, this is the, and if you solve it by the way, okay, tan of 15, 1 minus 1 by root 3, and this is 1 minus 1 minus, देखो ये तो कट ही गया है मेरे ख्याल से. सर रूट 3 तो कट जाएगा. No, hold on. So tan 30 is root 3 minus 1. This is also 1 minus 1 into root 3. No, this whole expression I'm seeing, right? Yes, sir. Yes, तो 0 हो जाएगा. नहीं 1 आ जाएगा. तो 1 आएगा. Sorry, this is tan 45, so 1. This is tan 30, so this is 1 by root 3. Yes, sir. Right, so ये लिखा है मैंने. And this is 1 minus 1 into 1 by root 3. Right, but I'm surprised tan 15 degrees. How are we calculating? एक minute, just give me. There is a tan table available. Yes, there is a tan table available, but I'm just seeing ki how do I tan of 15 degrees. Okay, so tan 15 degree. Okay. 0.267 9. Okay, so tan 45 is tan. Oh, sorry, mistake. Okay, so this is plus. Okay. The rule is this: tan A minus tan B is this. Okay. Okay. That is why I think we were missing the point.
Okay, so tan A minus tan B. Anyway, so if you solve this up, put the value here. इसको solve कर लो. हाँ. So you will get 0.26. So if you do this, you will get uh, under root of 100 into 10 into 0.26. So this is 226 into 10 Yes, is sir. equal to under root of 260. 260. 17 is 289. Okay. And 15 is 15 into 15 is 225. And 17 into 17 is 289. तो इनका एवरेज भी ले लो अगर तो 414 आ जाएगा, बीच में है कहीं पे, राइट? सो दिस विल बी अराउंड मे बी 16 into 16 is 256. तो 256 के काफी है, 16.2 मे बी 16.1. Okay. Okay, Answer. sir. So you were right. Sir. You got the formula right. Yes, Only sir. thing is probably trigonometry is not this much trigonometry you don't know. Then is sir trigonometry. ये नहीं पता होगा, ये मैथ्स के बच्चों को पता है, राइट? Sir. हाँ, sir. बट ये यूज होता है tan of a minus tan b upon. Okay, let's see if we have some other questions also available on banking of curves. This question is bound to come. ये आएगा, So, sir. Okay. पक्का है मतलब, ठीक है? अब मैं let me give you a question. All right. All right. So the question is, there is a curvy road. There is a curvy road. Okay. So there is a curved road. Okay, sir. Now the data which is given to you is कि road is 19.6 meter wide. 9. चौड़ी, हाँ, sir. ठीक है? और जो outer edge है road की, it is 1 meter higher than the inner edge. Okay. Maybe like this. ठीक है? It is, so the outer edge is 1 meter higher. ये inner हो गया ना road. हाँ. ठीक है, मैंने तो एंगल बहुत बड़ा दिखा दिया. You have to find what is the maximum safe speed which is allowed on this curve. तो इन्होंने डायरेक्टली एंगल बैंकिंग दी नहीं, बट ये बता दिया दिस इज 1 मीटर एंड द रोड इज 19.6 मीटर वाइड. तो इनडायरेक्टली थीटा बताने की कोशिश है बैंकिंग की. तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू यूज RG tan थीटा एज योर V max. बट tan थीटा इसने वो ट्रायंगल की फॉर्म में छुपा दिया है. Okay. ये 19.6 डायग्राम में जो रोड की चौड़ाई है वो दी हुई है. हाउ वाइड इज द रोड, राइट? एंड दिस इज 1 मीटर. इसने लिखा है द आउटर एज. ये आउटर एज हो गई रोड की. Oh, yes, sir. एंड दिस इज योर इनर एज. तो रोड की विड्थ भी पता है आपको. ओके, सो tan थीटा कितना आ जाएगा आपका? tan theta is equal to, if you're going on this road, right? So road, see, you can see road width as this also. Wide कितनी है road, right? So maybe this is 19.6. दिया ना, road width is sir. So let's say tan theta कितना आ गया हमारा? Equal to perpendicular upon base. Yes, sir. 1 upon 9.6. the rule is R G tan theta. Okay. Right? ये है ना road formula तो. Okay, so you have to find the speed for which it is banked. What is the maximum speed allowed? The radius. Sorry, so that is given to be 800 meters. Okay. The radius है gravity. वो तुम ले सकते हो ना, you can take it. हाँ, ले सकते हैं. But मैं I will take 9.8 क्योंकि इससे कट जाएगा मेरा. Okay. Radius is 800. G is 9.8. And tan theta मैंने निकाल लिया 1 upon 19.6.
very tricky language because he says the outer edge is 1 meter above the inner edge. तो height दे दी वो जो एंगल से बन गई. यस सर. बैंकिंग में ऑब्वियसली एक साइड की हाइट ऊंची है ना, वेट. आप देख लो यस डायग्राम्स में. सर. होगी. ये रही, ये हाइट बढ़ी हुई है ना, यस सर. ये हाइट ही तो है. ये बड़ा तो रोड एक साइड ऊंचा हो गया. हम्म. ये जहाँ सिर्फ फ्रिक्शन है वहां रोड फ्लैट है, ये वाला. फ्लैट. ओके. ओके सर. वहां ऊंचाई नहीं दी ना आपने, सिर्फ फ्रिक्शन से काम चला रहे हो. राइट, ट्रिकी लैंग्वेज यूज करते हैं थोड़ी थोड़ी. लेट्स सी, try and solve some more questions on banking. Expected topic, they do ask. सर. सर दे विल. You will see, ये आता है. All right. Okay, so let's say you are doing a question in which so sometimes they will use the word angle of slope. एंगल ऑफ. ओके. तो tan थीटा दिया हुआ है, मतलब हाँ. जैसे एंगल ऑफ स्लोप दिया 10 डिग्रीज, तो इस टाइम की बैंकिंग एंगल इज 10 डिग्रीज. ओके, मतलब रोड जो है वो ऐसे है, 10 डिग्री पे थोड़ी सी करी हुई है. थीटा. राइट, दिया हुआ है. राइट, so don't get scared of the words like safe speed and all that. All is pretty well known. I'm just seeing if there are any questions in NCRT. ओके सर. NCRT के questions अगर हो. Okay. अच्छा, कई बार क्या होता है ना, so point is, one of the good thought process is, हाँ. assume in places where there is a lot of ice. आइस. हाँ, बर्फ हो गई, हाँ. हाँ सर. वहां फ्रिक्शन कैसे लाओगे, रोड तो ढक गई. सो हाउ विल यू गेट फ्रिक्शन, पॉसिबल नहीं है ना. नो सर. कई कंट्रीज में बहुत बर्फ गिरती है, हाँ. तो फ्रिक्शनल रोड तो रहती नहीं है. तो हाँ. वहां पे आप देखोगे कि बैंकिंग का बहुत यूज होता है. फ्रिक्शन तो मिलना ही नहीं ना, क्योंकि बर्फ पड़ी रहती है हमेशा. हाँ सर. So therefore banking as a source of centripetal becomes very important on the circle. तो कई कंट्रीज में जहाँ बर्फ होती है, वहां पे जितने भी सर्कुलर टर्न्स होते हैं, हाँ. वो बहुत अच्छी तरह से बैंक्ड होते हैं. इंडिया में नहीं होते क्योंकि हमें दिखते भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्फ वी ही डोंट नहीं. हैव टू मच बर्फ. राइट, सो सर. हम फ्रिक्शन से काम चला लेते हैं. लोगों का हाँ. टायर जो है वो खराब होता रहे, इस. सर्कल पे खराब ही होगा. स्टेट की बात नहीं हाँ. कर रहा मैं, उसमें खराब नहीं होगा सर्कल बट की बात कर रहा हूँ. तो स्ट्रेट भी थोड़ा थोड़ा खराब होगा. बट हाँ सर. सर्कल में ज्यादा. बहुत घूमेगा तो फिर काफी वियर एंड टीयर हो जाएगा उसका. यस सर. राइट, ओके. I'm just checking exemplar and NCRT. ओके सर. If you have some questions on the topic of banking of the curve, so we will do that. करते हैं फिर. ठीक है. NCERT exemplar laws of motion PDF. Just seeing अगर कोई Okay, very nice question. ओके सर. I hope it is. Okay, CD and
Do you know how to take snippet? कैसे लेते हैं वो? तो स्निपिंग टूल से मतलब वो जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसका. How do you take it? स्क्रीनशॉट नहीं ले लेते थोड़ा सा किसी भी क्वेश्चन का, जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं. हाँ हाँ एक कंट्रोल कुछ होता है. ओके. शिफ्ट स्टार्ट एस. ऑल Shift start S. Wait. Shift start S. Mine doesn't work. Anyway, let me, क्योंकि इसको draw करना ना फिर it gets very difficult. Shift start S. so all plus प्रिंट स्क्रीन कुछ है. हाँ यही होता है. हाँ सर. Something. so all plus PRT. Let me see if I was in. No. What crap, man. Let me draw it myself, okay? Question ही बना देता हूँ मैं पूरा. So the racing car is there and it is without banking. Okay, and okay. there is a circular arc of radius 2r, and there are two straight paths CD and FA which are given. Straight, okay, and DF is a circular arc. I think ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे को डायग्राम बनाने में मुश्किल आएगी. Otherwise, would have been a very nice question to do. If I share the link with you, can I take a screenshot? yes sir. तो मैं अगर लेके आपको वो दे दूं तो लिंक, तो उसमें स्क्रीनशॉट ले लोगे? हाँ हाँ मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ. जस्ट ओपन इट. You have sent you the NCERT exemplar. सर पेज पेज नंबर बता दीजिए. पेज नंबर बता देता हूँ मैं आपको. इट इज व्हाट पेज नंबर? वेरी गुड क्वेश्चन. पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 5.37, पेज नंबर 36. देखा सर्कल वाला? 5.3 5.37. दिख गया. उसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे पेस्ट कर दो व्हाइट बोर्ड पे. ठीक है सर. यू कैन पेस्ट ऑन व्हाइट बोर्ड जूम के. कंट्रोल V. yes sir. It will come. I think it's a good question to do. तो इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा हाई लेवल है बट अच्छा है. कंट्रोल V. पेस्ट करा था हो नहीं रहा है. No? तो won't let. Let me see if I can do this. Just give me 1 second. yes sir.
I have taken a photograph. Okay, sir. Desktop पे ही. Hmm. Okay. Let's go to. I hope it gets pasted. This is a better method. So, Take picture and paste. आ गया. आगे ठीक है, I hope it gets enlarged. वो हो जाएगा sir. I'm trying to pull it. Yes. हो गया. हाँ. All right. So let's discuss this. So you can see that a racing car is traveling on a track without banking. Okay. So there is no banking, no theta, which Hmm. means friction will be used, right? Now ABC is the circular track. वो दिख भी रहा है. ABC. Okay. So, And the radius of 2r. So the radius is given to us. 2 hours. It says CD, EA, and Hmm. FA. EA. These are straight paths of length R. Okay. Hmm. And DEF. This. Okay. These are circular arc of radius. Is a So, circular arc of radius R is equal to 100 meters. hmm. 100 sir. CD and FA are straight paths of length R. Okay. Okay. CD. CD. The straight path, CD or FA. But they don't The look like circular, straight. They look like the tangent type of thing. on the circle ही है. Hmm. Anyway, the coefficient of friction is also given to us. Let's see. Okay. 0.1 Hmm. and Okay. R value is given to be 100 meters. It's the Question is what is and the maximum speed which is allowed is available to us. speed with zero. Yeah. 50 meter per second. Banking का purely वो question उसका नहीं है. V max का. Find the Okay. minimum time for completing the round. Time निकालना है. Okay. Okay. Time. हाँ जी. Okay. Minimum time निकालना है. But let me just see. थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ मैं. हाँ. So I'm not able to see it properly. एक minute. So CD and FA. CD and FA are two paths of radius. So what is the minimum for completing one round? What is the V max भी दे दिया and DEF भी दे दिया. So, DEF is a circular arc of radius 100 meters and DEF is not on DEF अगर circular arc है. What is the significance of DEF is a circular arc of radius R is equal to 100 meters. The coefficient of friction is 0.1. And there are two straight paths. One is CD. He says this is a straight path. Appears to be on the circle here. E to F also is part of the circle. it's the FM. CD is on the circle. Okay. So the way I see this, first of all, let's not get confused. My understanding is that that this part, okay, which is A to C, is a pure circle, right? इसमें तो कोई straight path है भी नहीं, हाँ. right? तो अगर ये 90 डिग्रीज है तो बाकी जो सर्कल बचा मेरा वो कितना बचा? 3/4 ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, राइट? मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी की. हाँ. जो मैंने दिखा रखा है तो ये तो मेरा प्रॉपर सर्कल है ना. हाँ. सो 3/4 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस कितना है? 2r है इसका बढ़ेगा, दिया हुआ है ना 2r.
हाँ सर, 2 और ABC is a circular arc of radius 2r. 100 तो मैं मीटर। रेडियस की जगह लिख रहा हूँ 2 into 100. 2r है ना, 2 times r रेडियस, हाँ सर। 2 times r दिया हुआ है ना रेडियस, हाँ। तो लिख दिया मैंने ये रहा. So this is my circumference which I have to cover with what velocity? 50 meters, right? यस सर। I have 50 meters available with me. I know the radius also. So how much will be my omega? V is equal to omega r. So V is 50 यस सर। is equal to ओमेगा omega निकाल लेते हैं. Omega is the angular velocity. Radius is 200. So omega is equal to 50 by 200. 40। 1 by 4. So I can write it as 2 pi by t is equal to 1 by 4, right? So t is equal to 8 pi radian, 8 pi seconds. यस सर। So to cover ABC, I need तो मैं इस पाथ पे तो I will go at the maximum speed, right? सर A to C। A to C तो मेरे को टाइम कम से कम रखना है ना. हाँ। How do I minimize my time? A to C में फास्टेस्ट जाओ. हाँ। ठीक है. अब मुझे ये बोलता है कि CD and FA are straight path. तो यहाँ तो स्ट्रेट पाथ है तो सेंट्रीपिटल वो तो यूज ही नहीं होगा, मतलब सर्कुलर है ही नहीं इसका मतलब CD, और वो यही कहना चाहता है ये हाँ। कि CD एंड FA आर स्ट्रेट पाथ. तो दोनों की लंबाई कितनी है? R ईच है. CD and FA are straight paths. यस सर। So I will again keep a velocity of 50 here. So the total I have to cover is 100 plus 100. दोनों RR है. मेरी velocity मुझे मालूम है. So I know my distance is equal to speed into time. Speed is 50 into हाँ। T for CD plus FA. So T for CD plus FA is equal to 200 divided by 50 is equal to 4 second. राइट. अब बात करते हैं एक कर्व की जो है FED. ओके। Now FED is very different, though it looks to be part of this. इन्होंने डायग्राम शायद ठीक नहीं बनाए हुए हैं, है ना. मैं इसको फिर डायरेक्टली जोड़ ही देता ना अगर स्ट्रेट पाथ है तो. और ये कर्व है, बोलता है FED. अब थर्ड रह गया मेरा FED. FED is very tricky. The circular path of FED radius is how much? 100। 100 only. यस सर। It is not part of the big circle, right? Which means since the radius is gone down, right? Radius नीचे चला गया. यस सर। अच्छा, एक मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा सर्कुलर मोशन में मैंने 50 तो यूज कर लिया यहाँ पे स्पीड को, बट हाँ। फ्रिक्शन जो मेरे पास अवेलेबल है वो 0.1 है, याद रखना. तो मैं V मैक्स पता लगा लेता हूँ कितना अवेलेबल है. 0.1 इंटू 9.8 इंटू 200 बाहर वाली रोड पे. ये वाली जो A टू C वाली रोड है, हाँ। जो हमने ये कैलकुलेशन करी है, इसमें तो हमने 50 यूज कर लिया ना. बट दैट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार. कार कैन नॉट गो बियॉन्ड 50. बट ये पता लगा लेते हैं कि रोड पे अलाउड कितनी है, सर्कुलर रोड पे. तो देख लो कितनी अलाउड है. ये हो गए 200 इंटू 98 बाई 100, राइट. सो दिस इज 196. Oh, on the circular road the maximum speed allows is only 14 meter per second. 50 पे तो जाना ही मना है. तो 50 पे जा रहा है। ये दिया था ना 50 पे मैक्सिमम स्पीड, तो मैं चला ही नहीं सकता इस पे तो, क्योंकि मैं सर्कल से बाहर हो जाऊंगा. तो वही। तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी ना. हाँ। तो मैं क्या करता हूं, लेट मी चेंज दिस स्पीड टू 14. समझ आ गया क्या करा मैंने? अच्छा ये सो तो आपने V की वैल्यू रख। V की वैल्यू मैंने निकाल ली. हाँ सर, बट किसी भी सर्कल में मैक्सिमम स्पीड अलाउड है मुझे, सेफ स्पीड अलाउड है.
सेफ स्पीड निकालूंगा ना पहले तो मैं, यही तो फॉर्मूला था ना हाँ सेफ स्पीड का फ्रिक्शन में। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, हाँ सर। ये निकाल ली मैंने सेफ स्पीड ए टू हाँ सी की, ए बी सी की। yes, sir। तो मैंने देखो अपनी स्पीड अब यहाँ चेंज करके 14 कर दी है। हाँ सर। सर यस। सही करा ना? नहीं तो हाँ मैं, अगर मैं 50 पे चला जाऊं, क्योंकि उसने लिख दिया मैक्सिमम स्पीड, लेकिन सर्कल पे तो मैक्सिमम 14 से ऊपर जाना मना है, तो हाँ राइट? तो मेरा आंसर आ गया 7/100। तो 2 पाई/t इज इक्वल टू 7 7/100। सो दिस बिकम्स 200 पाई। इसको भी आई विल चेंज इट। सो वी हैव टू ब्रेक द होल रोड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ऐसा लग रहा है किस रोड पे कितनी स्पीड अलाउड है वो निकालना पड़ेगा हमें, है ना? तो तो हाँ ए टू सी तो मैंने निकाल लिया 200 पाई/7। yes, sir। टाइम, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ की। स्ट्रेट पाथ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेफ स्पीड की। हाँ सर मतलब तो वहां straight। 50 पे चला रहा हूं मैं एकदम जैसे ही सर्कल से बाहर निकल के सी से बाहर निकलूंगा, मैं हाँ स्ट्रेट पाथ पे जाऊंगा ये वाले, हाँ और इस वाले तो मैं 50 पे खींचूंगा ना गाड़ी। हाँ खींच ली मैंने, ये लो। ये दोनों आर आर के थे ना, आर आर। yes, तो 4 सेकेंड इसमें लगा दिए मैंने। अब मेरा हाँ छोटा सर्कल आ गया, राइट? उस पे भी मैं सेफ स्पीड निकाल लूं, तो निकालिए। छोटे सर्कल पे। ये लो, ये मैं निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शन तो सेम ही है रोड पे, मटेरियल तो रोड का वही है। इनटू 100 कर देता हूँ अब। छोटे रोड, छोटे आर की डी ई एफ की बात कर रहा हूँ मैं। दी- हाँ डी ई एफ पे क्या है मेरा? 98। इंटू 100 करूंगा, 0.1 इंटू 9.8, तो ये 98/100 बन जाएगा। yes, sir। 98/100, ये 1/10 है ना? हाँ तो क्या आ गया? 7√2। इससे ज्यादा स्पीड अलाउड नहीं डी ई एफ पे। हाँ तो मैं डी ई एफ पे कैसे जाऊंगा? इसी स्पीड से जाना पड़ेगा मुझे, तो नहीं तो सर्कल से बाहर हूं मैं। ये हाँ मेरी सेफ स्पीड है। इससे मुझे वेलोसिटी मालूम है डी ई एफ की 7√2, और मुझे वो आर्क की लेंथ कितनी दी हुई है उसने, वो भी बता रखी है। कि ये मालूम है कि द आर्क लेंथ इज डी ई एफ इज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर दे रखा है, और तो 90 डिग्री है ये एंगल, ये 90 है। ओके। तो 1/4 ऑफ अ सर्कमफ्रेंस हो गया ना भाई। अगर आप पूरा सर्कल लोगे और उसमें से सिर्फ एक 190 डिग्री इज 1/4 ऑफ द, सारा 90 में डिवाइडेड होता है ना सर्कल। Total circumference, this is 1/4 of a this is 1/4 and this is 1/4, each having 90 degree opposite to it। तो जो डी ई एफ आर्क है, डी ई एफ, उसका जो रेडियस दे रखा है इसने मुझे 100 दिया हुआ है, राइट? तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर अगेन। v सेफ इज 7√2। ओमेगा निकाल लेते हैं, उसका रेडियस कितना दिया? 100। सो ओमेगा कितना आ गया डी ई एफ पे जो मेरे को एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज 7√2/100। सो 2 पाई/t इज इक्वल टू 7√2/100। सो t इज इक्वल टू 200 पाई डिवाइडेड बाय 7√2 इज इक्वल टू 100√2 पाई/7 seconds। ओह, Add all the times, time number 1, टाइम नंबर 3, एंड 2 टाइम जो थे वो स्ट्रेट रोड्स के। सिर्फ स्ट्रेट रोड पे 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अलाउड थी। हाँ तो होगा क्या? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? मतलब सर कैसे बनाया क्वेश्चन। ओके, यहां से चला, सेफ इंटरेस्ट। स्पीड पे जाना पड़ेगा, जो निकली थी हमारी अभी 14 मीटर पर सेकेंड की। ए, बी और सी, राइट? अब एक फ्लैट रोड आया सी डी, उसके बाद डी ई एफ एक गोला आया, उसके बाद फिर से
एक फ्लैट रोड आया। तो दो फ्लैट रोड है और दो सर्कुलर रूट है। ये वाला सर्कुलर रूट जो है ये छोटे रेडियस का है और एक सर्कुलर रेडियस बड़ा रूट है ये वाला। तो अगर मैं रूट्स दिखाऊं इसके अंदर, जो मैंने रूट्स लिए हैं इसको कवर करने के लिए, एक ए से शुरू करता हूँ, ग्रीन रूट है मेरा ये, ए जो तो 14 से कवर करा है। ये सही टू सी 14 तक है। यहां तक ले लेता हूँ, चलो ठीक है। ठीक है। चलो यहाँ ऊपर बना दिया डी तो ठीक है, लेकिन मैं इसको मिटा भी सकते हैं। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट डाउन टू दिस प्लेस। ओके, सो दिस इज माय ग्रीन, ये मेरा सी है, ये मान लो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा बाकी सी टू डी था, सॉरी, ये मेरा फ्लैट पार्ट आ गया। इसको हाँ। मैं ब्लू में दिखा रहा हूँ, ये वाला, दिस इज फ्लैट। थ्री स्टार्ट। डी ई एफ इज अगेन नहीं, सर्कुल, छोटी आर्क सर्कुलर। इस डी ये सर्कुलर है। है ना, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला। अच्छा, मुझे टाइम निकालना था इसके अंदर, टाइम मैंने निकाल लिया है। v इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो मैंने एक, आई थिंक वी हैव डन अ मिस्टेक हियर इन द सर्कुलर, वी हैव फाउंड आउट टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड होता है पूरा चक्कर लगाने का टाइम, लेकिन हमें पूरा चक्कर नहीं लगाना, हमें तो 1/4 लगाना था ना। तो इस टाइम को मैं 1/4 कर रहा हूँ। ये डी ई एफ तो 1/4 ऑफ अ सर्कल है ना, पूरा थोड़ी ना है। ये टी तो होता है जो पूरे सर्कल के लिए होता है, तो 1/4 कर दिया मैंने इसको। और इसको ऊपर वाले को, ये वाला जो टाइम निकाला था हमने एबीसी का, एबीसी 3/4 ऑफ अ सर्कल, इफ यू नोटिस, यस सर, बिफोर। दिख रहा है 270 डिग्री, 90, 90 और एक और 90, ये लिखा है ना 90, तो बाकी 270 बचा। तो जो ये मैंने टाइम पीरियड निकाला है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3/4 ले रहा हूँ इसका मैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड तो होता है टोटल सर्कल का, लेकिन मैंने पूरा टोटल सर्कल कराया का है मैंने, ये तो 3/4 ऑफ अ सर्कल ही तो करा है ये, तो टाइम भी तो 3/4 करना पड़ेगा। टाइम भी यस करेक्ट। और ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है, ये सॉरी, डी ई एफ बाय द वे तो डी इज एस नॉट 1/4 ऑफ अ सर्कल, वो तो उससे कम है। बिफोर सर। थोड़ा छोटा नहीं है 90 से ये। अगर मैं डी ई एफ की बात करूं, ये वाले, इट इज स्मॉलर राइट। ये आर्क लेंथ अगर मेरे को मालूम चल जाए, व्हाट इज द आर्क लेंथ ऑफ दिस, दिया इसने? नहीं नहीं, आर्क की लेंथ नहीं बताई इसने, इसने रेडियस बताया सिर्फ। तो सेफ स्पीड भी मैंने निकाल ली, बट मुझे ये एंगल पता लगाना जरूरी है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं, ये तीनों बराबर ही हैं, तो ये वाली आर्क लेंथ जो है 1/4 ऑफ अ सर्कल के भी 1/3 है। ये पहले 1/4 ऑफ अ सर्कल है, उसमें थर्ड भाग है, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग, राइट। तो जो अगर पूरा सर्कल था 2π/100, अगर ये पूरा सर्कल होता ए टू, ए टू बी। हाँ, रुको, नो नो सही नो, तो वेट वेट वेट, लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग। हमने तो टाइम पीरियड निकाले, हमें टाइम पीरियड थोड़ा चाहिए था, वी हैड टू फाइंड द, वो आर्क कवर करने में कितना टाइम लगता है, मतलब इस आर्क को कवर करने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, इसने दी हुई है, सॉरी, द आर्क का एंगल ये 90 डिग्री दिखा रखा है इसने, ये सो आर्क इज सबटेंडिंग 90 डिग्री। तो ये जिस भी सर्कल का हिस्सा 1/4 है, सॉरी, ठीक लिया हमने। ये पूरे सर्कल का तो हिस्सा ही नहीं है ना, ये तो अलग सर्कल है सर। ये ऐसी सिचुएशन है ना, ये वाली जो हमने बनाई है, ये बड़ा सर्कल है, सेंटर यहाँ पे दिखाना चाहिए था मुझे, कह रहे नहीं वे। ये बड़ा सर्कल है, पहले आप बड़े सर्कल में ए से स्टार्ट हुए, ऐसे गए, सी तक पहुंचे, सी से फ्लैट रोड कवर करी, फिर एक 1/4 ऑफ अ सर्कल में गए, और फिर आपने एक फ्लैट रोड और ली। तो इसने 90 डिग्री ऑलरेडी दिखा रखा है, एंगल जो है। फिगर क्लियर है? 90 डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल। क्लियर है कॉन्सेप्ट हो या नहीं पता?
ये देख लो, दिस इज योर सर्कल। तो इसने ये बोला है कि आप शुरू यहां से हुए, सेफ स्पीड पे गए, यहां पे रुक गए आप। सो दिस इज ए बी एंड सी। उसके बाद आपकी फ्लैट रोड है, उसके बाद आप एक आर्क में जाओगे ये वाली, और ये छोटा सा कोई सर्कल आया है और ये इसने दिखा रखा है ये 90 है, और फिर बोला है ये वाला पाथ भी फ्लैट है। दिस इज फ्लैट, दिस इज ऑल्सो फ्लैट, दिस इज सम सर्कल ऑफ रेडियस 100 meters एंड दिस इज सम सर्कल ऑफ रेडियस 200 meters। तो यहाँ भी आपको सेफ स्पीड में चलना है, यहाँ भी सेफ स्पीड में चलना है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पे चल सकते हो। फ्लैट पे 50 है। और ये हमने जो टाइम पीरियड निकाला था, ओमेगा इज गिवन बाय 2π/t, ये लिया था मैंने। पहले मैंने लिया था v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v सेफली यूज कर ली मैंने सर्कल में। v इज इक्वल टू ओमेगा आर सर्कुलर मोशन में यूज होता है। ओमेगा निकाल लिया मैंने v/r, इसको लिखा मैंने 2π/t इज इक्वल टू v/r। ठीक है, तो इससे क्या निकाल लिया मैंने? टाइम पीरियड, राइट? बट टाइम पीरियड थोड़ी ना पूछा उसने। उसने तो पूछा है टाइम पीरियड का मतलब होता है पूरा सर्कल अगर एक दे रखा हो उसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन अगर मैंने जैसे ए बी सी में सर्कल ही 3/4 कवर करा है, जैसे पिज्जा होता है, ये 1/4 ऑफ अ पिज्जा, ये हाफ ऑफ अ पिज्जा, ये 3/4 ऑफ अ पिज्जा। जब मैंने कवर ही 3/4 करा है, तो जो भी मेरा टाइम पीरियड ए बी सी का आया था उसको मैं 3/4 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा ना। पूरा सर्कल तो है ही नहीं ना, ये टाइम पीरियड तो पूरे सर्कल के लिए होता है, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 3/4 कवर कर रहा हूं मैं, और जो छोटा सर्कल है वो 1/4 है सिर्फ। इट इज 1/4 ऑफ अ पिज्जा। एक्चुअली इट इज लाइक दिस सर्कल। The smaller DEF is like this. This is also 100 and this is also 100. तो ये कितना सर्कल, कितना पिज्जा है ये वाला पार्ट? 1/4। इसलिए इसका जो टाइम पीरियड निकला था इसी फॉर्मूले से, उसको 1/4 करा था मैंने। आई सेड ना कि 1/4 करना है, इसको 3/4 कर दो ये वाला, और ये वाले को डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 1/4 कर दो। और जो फ्लैट है उस पे 50 से चलाओ। जो मैक्सिमम स्पीड है फ्लैट पे तो खींचो ना, सर्कल है ही नहीं तो डेंजर क्या है। पूरी मैक्सिमम स्पीड पे चलाओ। लेकिन सर्कुलर पाथ में पहले मैंने μrg के फॉर्मूले से यहाँ पे पहले 14 निकाली, इसकी 7√2 निकाली। वो यूज करा मैंने ओमेगा निकालने के लिए। v इज इक्वल टू 50 नहीं यूज करा मैंने। 50 was very tempting to use but should not have been used. Very clever question, right? Very very clever questioning. सोचना क्या हो रहा है अंदर। और जैसे ही मौका मिला फ्लैट रोड पे गाड़ी खींच दी, टाइम बचा लिया। सर्कल आता है गाड़ी स्लो कर देते हैं, मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करी, अच्छा जी 14 पे जा सकते हैं, 14 कर दी। v इज इक्वल सर्कुलर मोशन की नॉलेज यूज कर ली, v इज इक्वल टू ओमेगा आर की। फिर देखा कितना सर्कल कवर करा है और टाइम को भी उसी प्रोपोर्शन में घटा दिया। अगर 3/4 ऑफ अ सर्कल है तो टाइम पीरियड का 3/4 ले लिया, और अगर सिर्फ 1/4 ऑफ अ सर्कल है, जैसे छोटे वाला DEF था, तो उसको 1/4 कर दिया डिवाइडेड बाय 4। फिर सारे टाइम्स को ऐड कर दो, आंसर गॉट इट। समझ आया डिटेल में? वेरी वेरी क्लेवर क्वेश्चन। ठीक है जी, टेक रेस्ट नाउ, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। ठीक है, see you tomorrow and we will start doing now work power energy. We will see if any topic is left in Newton's law and then we will proceed for work power energy. And tomorrow we also need to revise what? Chemistry. So we will do revision of chemical bonding and we will also do work power energy.